أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا اور انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آنے والا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والا ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کی رکو نمبر 13 کی یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 106 اور 107۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں 103، 104 اور 105، اس کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کے پچھلے دروس میں ہمیں سنا ہے کہ یہ اہل کتاب، یہ بنو اسرائیل، یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کیا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کو بد دعائیں بھی دیا کرتے تھے، اور جس بات کا بغض اور عناد اور دشمنی ان کے دلوں میں تھی وہ یہی تھی کہ اتنا کامل نبی، اتنا کامل مذہب اور دین ان مسلمانوں کو ہی کیوں ملا، یہ ہمارے حصے میں کیوں نہیں آیا، کیوں یہ آخری نبی بنو اسرائیل میں پیدا ہوا۔ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے کی وجہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، اور اس میں کوئی نقص، کوئی برائی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں وہ سوال کا جواب ہمیں اس نبی سے مل جاتا ہے، ہر مسئلے کا طور و طریقہ ان کی شریعت میں ہمیں ملتا ہے۔ کیوں یہ کامل نبی اور کامل شریعت انہی لوگوں کو ملی، انہی عربوں کو ملی؟ یہ بغض اور عناد ان کے اندر تھا۔ اسی بغض و عناد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مسئلے کی طرف نشاندہی اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ناسخ اور منسوخ کا۔ ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے
उनके बुरे खसाइल, रजील खसलतों का अल्लाह ताला जिक्र करता है, वहां पर नासिख और मनसूख के मसले के बयान करने की क्या वजह है? नासिख और मनसूख कैसे किसको है? मोटी बात अगर कही जाए तो एक हुक्म होता है, उसको निकाल कर दूसरा हुक्म दिया जाता है। यानी यूं समझ लीजिए मिसाल के लिए कि एक कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है कि यहां से तुम सीधे बॉम्बे जाओगे, ये पहला हुक्म था। अब कुछ देर के बाद उसने कहा कि नहीं, तुम बॉम्बे तो जाओगे मगर पूना में रुकोगे एक दिन और एक रात, उसके बाद जाओगे। अब ये हुक्म में तब्दीली हो गई, गोया कि पहला हुक्म मनसूख हो गया और ये जो दूसरा हुक्म है ये नासिख कहलाता है। उसी बात पर अमल किया जा रहा है, उसी कमांडर के हुक्म की तामील की जा रही है, मगर बड़ा रास्त पहुंचने के बजाय पूना में एक दिन और एक रात कियाम किया जा रहा है। इसी तरह वही कमांडर ये हुक्म दे सकता है, वो जरूरत और हालात की तक ये भी हुक्म दे सकता है कि तुम बॉम्बे जो जा रहे हो वो कैंसल, सिर्फ पूना जाओगे, वहीं रहोगे और अपना काम करके वापस आ जाओगे। इसी तरह वही कमांडर जरूरत और हालात के तहत ये भी हुक्म दे सकता है कि अब तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है, यही मुकीम रहना है। तो ये जितने भी बात के अहकामात आएंगे ये सारे के सारे नासिख हुक्म कहलाते हैं, नासिख अहकाम कहलाते हैं, और जो कुछ पहले गुजर चुके अब जिन पर न अमल हो रहा है और नहीं जिनकी अभी जरूरत है या जिनमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई, वो सब के सब मनसूख कहलाते हैं, यानी जो मनसूख कर दिए गए। अब जब इसका मोटा मोटा माना और मफहूम और तारीफ और डेफिनेशन जब मालूम हो गई तो इस किस्म के मसाइल यहूदियों का तस्करा करते हैं, उनके रजील और बुरे खसाइल का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला यहाँ पर क्यों बयान कर रहा है? तो सवाल उठता है, तो बड़ा अहम सवाल है। इसकी वजह यह है, इसका जवाब यह है कि जहां यहूदी हजरात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, उसकी वजह यह थी कि ये नबी बनो इस्राइल में से नहीं है, बनो इस्माइल में से है। वहीं पर जिस दीन और मिल्लत के वो मानने वाले थे, जिन किताबों पर उनका अकीदा और ईमान था, हालांकि वो भी जाहिरी और बड़ा नाम था, कोई खास अकीदा, ईमान और अमल उन किताबों पर भी नहीं था, मगर उनके अकीदे के मुताबिक तौरात के ताल्लुक से वो ये अकीदा रखते थे कि तौरात में कोई भी हुक्म मनसूख नहीं है, तौरात का कोई भी हुक्म काबिल नसख नहीं है, छोड़ने वाला हुक्म नहीं है, तौरात मनसूख नहीं हुई, आज भी तौरात है, कयामत तक तौरात रहेगी। ये अकीदा उनका था। इस अकीदे की वजह से वो यहूदियत को छोड़कर इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। क्यों? इस्लाम को कबूल करने का मतलब यह है कि जिस नबी पर उनका ईमान है वो नबी अब मनसूख हो गया, जिस किताब पर उनका ईमान है वो किताब मनसूख हो गई, उसके बजाय या उसके बदले अपडेटेड वर्जन यानी अपडेटेड नबी आ गया, आखिरी नबी, और अपडेटेड किताब यानी कुरान मजीद आ गई। गोया कि पहले के ओल्ड वर्जन को, एक मिसाल दे रहा हूं कंप्यूटर की जुबान में, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, ये उनसे नहीं हो सकता था। इसी बुग़्ज़ और अनाद की वजह से उन्होंने तौरात को भी नाकाबिले मनसूख समझ लिया था, यानी ये मनसूख नहीं हो सकती। अल्लाह ने उनके इस अकीदे को रद्द करने के लिए, अल्लाहु अकबर, ज़ात हो तो ऐसी, इतनी बेहतरीन सिफात वाली रब हो तो ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही एक रब है, कामिल सिफात वाला, वहदहू ला शरीक लह, एक है जिसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने उनके इस अकीदे को रद्द करने के लिए, नासिख और मनसूख के मसले को समझाने के लिए अल्लाह जो बात कहता है बड़ी ही प्यारी बात है। क्या कहता है? आयत नंबर 106 सूरह बकरा सूरा नंबर 2, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअती बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور سے سنیں آپ، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا یا نہیں بھلا دیتے، نأتی بخیر منہا مگر اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اس کے جیسی ہی ایک آیت لے آتے ہیں۔ مخاطب اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی آپ سن لیں، اللہ بھی اپنے احکامات میں ناسخ اور منسوخ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی حکم کو، کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے تو اس کے بدلے نئی آیت لے آتا ہے جو اس سے بہتر ہوتی ہے، احکام میں اس سے زیادہ سہولت اور نرمی ہوتی ہے، یا پھر کم از کم اس کے جیسے ہی صفات، اس کے جیسی احکامات، اس کی سہولت رکھنے والی دوسری آیت اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ اے نبی یہ کام جب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو یہ یہودی کون ہے، یہ بنو اسرائیل کون ہے کہ اپنے بنے بنائے مذہب پر قائم ہے، خود کے طرف سے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کی، اپنے مطابق انہوں نے اپنا مذہب بنایا، اب کہتے ہیں کہ اب یہ منسوخ نہیں ہونے والا، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کہا جب اللہ اپنے کاموں میں ناسخ اور منسوخ رکھ سکتا ہے تو ان کی کیا اوقات ہے کہ انہوں نے تو خود سے اپنے دین و مذہب کو بنا لیا اور اسی پر پابند ہے اور کہتے ہیں کہ اب اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ نے اپنی خود کی مثال دی تھی اور ان کے اس عقیدے کو رد کیا کہ اللہ تو اپنی طرف سے بھی آیتوں کو منسوخ کر کے دوسری آیت لے آتا ہے۔ قرآن مجید کے آیت نمبر 106 کے ظاہری الفاظ اور ظاہری معنی کے مطابق تو قسم خدا کی ایک سیدھا سادہ لوح مسلمان کم از کم اتنا عقیدہ ضرور رکھے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے، اس کے بدلے دوسری آیت لے آتا ہے۔ اگر کوئی اس سیدھا سادہ مسلمان کے بجائے کوئی اپنے آپ کو چست چالاک چوبند کوالیفائڈ پڑھا لکھا اگر کہتا ہے اور اس کی پڑھائی لکھائی، اس کا کوالیفیکیشن اگر اس عقیدے کے خلاف چلا جائے جو کہ صحیح ہے، کیا اللہ تعالیٰ آیتوں کو منسوخ کرتا ہے تو دوسری آیت نہیں آتا ہے، اس کے خلاف چلا جائے تو آیت بدل نہیں سکتی، آیت غلط نہیں قرار دی جا سکتی، بلکہ وہ شخص غلط ہو جاتا ہے جس کا علم غلط بنیادوں پر بنا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، دینی دنیاوی بڑے بڑے لیکچرر ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی کیا کوئی ناسخ اور منسوخ آیت ہے؟ کیا قرآن میں بھی ایسی آیت ہے جو ناقابل عمل ہے؟ نہیں، قرآن تو اتنا بابرکت قیامت تک رہنے والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی آیت منسوخ ہو ہی نہیں سکتی۔ عقل لگائی، لاجک لگائی، منطق لگائی اور آیت نمبر 106 کا انکار کیا۔ میں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہے کہ جہاں قرآن کی محبت، تعظیم اور اس کی عزت کے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن قیامت تک رہنے والا ہے، ناقابل عمل کوئی آیت ہو نہیں سکتی، وہیں پر آیت نمبر 6 کا بھی انکار کر دیا۔ ماننا تھا کہ پورے قرآن کی 6666 آیتوں کو 6666 آیتوں کو ماننا چاہیے تھا، اس میں ایک آیت چھوڑ کر 6665 آیتوں کو تو مان رہے ہیں پر ایک آیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ کہہ کر کہ قرآن میں کوئی ناقابل عمل آیت نہیں ہے۔ اب یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ غلط فہمی یہ کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ غیروں کی نہیں، یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے بھائی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جن میں بعض سادہ لوگ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر وہ لیول تک نہیں پہنچتے جہاں علماء ہوتے ہیں، تو اس طرح ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ اپنی عقل کو اسلام کے تابع کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی عقل کے تابع کر لیتے ہیں اور ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور جب ان سے بات چیت کی جاتی ہے، میرے ماضی میں ایک شخص سے ایسی ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی کے ناف تک داڑھی آ رہی ہے اور ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت، احادیث عربی میں، ایسے شخص سے بات کی جا رہی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے
کہ सिराज भाई अगर कोई शख्स कहे कि कुरान में कोई आयत मनसूख है, मैं ऐसे शख्स को काफिर मानता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई ऐसा? ना मनसूख का मतलब यही है कि ना काबिल अमल, ये उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा कैसे? फिर मैंने कहा वो जो आयत आया था 106 का क्या माना मफहूम है, इसकी भी तावील कर दी। देखिए ना, जाहिर अल्फाज आप कहे तो, और एक बार फिर मैं लफ्जी तर्जुमा करता हूँ। लफ्जी तर्जुमे के हिसाब से जाहिरी माना क्या निकलता है, इसको छोड़कर इसकी तावील कर रहे हैं। लफ्जी तर्जुमा पहले करता हूँ, फिर उनकी तावील आपके आगे रखता हूँ। मानसख मिन आयतिन, नहीं मनसूख करते हम किसी आयतों को या आयतों में से किसी आयत को, औ नुनसिहा, या नहीं भुला देते। नुनसिहा नसिया से बना हुआ लफ्ज है, निसियान यानी भूलना, निसियान यानी भूलना। औ नुनसिहा, या फिर नहीं भुला देते कोई आयत, आयतों में से कोई आयत, नअती ले आते हैं हम, बिखैरिन बहुत ही बेहतर, मिनहा इस आयत से जो मनसूख की गई, और मिसलिहा या मनसूख वाली आयत से भी, या मनसूख वाली आयत जैसी एक आयत। ये लफ्जी तर्जुमा। अब इसका जो तर्जुमा और तावील और तशरीह और तफसीर वो साहब जो बयान कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। वो मिसाल इसलिए मैंने दी क्योंकि उनसे बराह रास्त मेरा मुबाहिसा और मेरा डिस्कशन हुआ। उन्होंने इसकी जो तावील और तशरीह की वो ये की, मानसख मिन आयतिन का मतलब ये है अल्लाह ताला मनसूख नहीं करता या नहीं भुला देता किसी किताब को, किसी किताब को, पर उसके बदले कोई अच्छी और किताब ले आता है या उसके जैसी किताब। तो कहा यहाँ पर जिक्र कुरान का है और मनसूख से मुराद पिछली किताब है। अल्लाह ताला पिछली किताबों को मनसूख कर रहा है, सिर्फ कुरान को अब नासिख रख रहा है। इसकी ये तशरीह होने की कसम खुदा की, अल्लाह ताला की कसम खाई कह रहा, 1000 से ज्यादा साल हो गए, 1450 साल हो गए इस आयत के उतरते, और तफसीरें बयान करते हुए आप वसल्लम के जमाने के बाद से 1200-1300 साल गुजर गए। एक सहाबी ने भी, एक ताबई ने भी, एक तबे ताबई नहीं, न एक मुहद्दिस ने और न एक इमाम ने इस आयत की कभी ऐसी तफसीर बयान की हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब आप बताइए ये कौन है और कहां से किस तरह पैदा हो गए कि इस आयत का मानो हम ये बयान कर रहे हैं कि इससे पहले की आयत क्या किताबों को मनसूख कर देता है अल्लाह ताला, और नई मनसूख किताब है जो कुरान लेकर आता है, जबकि यह लफ्ज किताब ही नहीं, आयतिन लफ्ज ही मौजूद है। मानसख मिन आयतिन, नहीं मनसूख करते हम आयतों में से किसी आयत को। जाहिर सी बात है लफ्ज आयत ही, फिर भी उन्हें क्या मफहूम बयान किया, किताब। अब जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो वाकई ऐसा लगता है कि अल्लाह तेरी जात बेशक बाबरकत जात है, आली शान उलू शान वाली है कि तूने वाकई इस आयत को कयामत तक रखा। और नहीं आयत सिर्फ अगर 1450 साल में नाजिल होती और यहूदियों के इस अकीदे के रद्द के लिए कि उनका यह अकीदा था कि उनकी तौरात मनसूख नहीं है, उनके रद्द के लिए आयत नाजिल हुई, अगर उसी वक्त आयत उठा ली जाती तो ऐसे लोगों का जवाब कौन देता? कयामत तक अल्लाह ने आयत रखा और कहा कि देखो मेरा माना मफहूम ये है कि मैं इस कुरान मजीद की बाज आयतों को मनसूख करता हूं और बाज को नासिख रखता हूं। ये मुगालता जो हुआ बाज हजरात को, मुसलमानों में से बाज को, इस वजह से हुआ लफ्ज मनसूख का माना और मफहूम सही तौर पर न समझने की वजह, लफ्ज मनसूख का माना और मफहूम सही तौर पर न समझने की वजह से, या समझा भी तो ऑन द बेसिस ऑफ डिक्शनरी, लुगात में लुगवी माने देखने की वजह से इस आयत का माना और मफहूम उन्होंने गलत समझा, या इस आयत की तावीलें उन्होंने गलत की। क्योंकि बाद डिक्शनरीज में जो उर्दू की हैं, अब वो साहब
तो बड़ा नाम अरबी पढ़ते थे, ढंग से अरबी आती नहीं थी, नहीं अरबी ग्रामर आता था। एक आज उर्दू की किसी किताब में, डिक्शनरी में उन्होंने देख लिया लुगात में कि मनसूख का क्या माना है, तो वहाँ लिखा हुआ था नाकाबिल अमल। तो उन्होंने समझ लिया कि नाकाबिल अमल तो कोई आयत ही नहीं। अब मुगालिता हुआ। इसको कहते हैं कि जो घड़ा पानी का जो मटका होता है, अगर वो आधा हो तो बहुत ज्यादा तोड़कता है, बहुत ज्यादा उछल कूद करता है और सबको ये बतलाता है कि मेरे पास बहुत इल्म है। जो घड़ा भरा हुआ होता है वो हमेशा शांत होता है, उसको मालूम मेरे पास है जो है, जिसके पास होता नहीं वो ज्यादा उछलता है। तो उन्होंने इस किस्म की एक आध माना और मफहूम देख लिया डिक्शनरी में और मुगालिते में आ गए, जबकि हकीकी माना मनसूख का है क्या। आइए बड़ी सीधे साधे अंदाज में आपके आगे लफ्ज नसख का, लफ्ज मनसूख का और लफ्ज नासिख का एक मोटा मोटा मफहूम आपके आगे रखो। नसख कैसे, किसको नसख कहते हैं? नकल करदा चीज को नसख कहते हैं, नकल करदा चीज को, मनकूल चीज को नसख कहते हैं। इसी से बना हुआ लफ्ज उर्दू का नुस्खा, हम क्या कहते हैं, ये कुरान का नुस्खा है। गोया कि एक नकल की है किसी की, एक मास्टर कॉपी थी, उसका प्रिंटिंग है ये, इसलिए इसको नुस्खा कहते हैं। कोई किताब जब छपती है तो उसको कहते हैं ये एक नुस्खा हमारे पास बचा हुआ है, मास्टर चीज नुस्खा, मास्टर नुस्खा। नुस्खा कहते हैं नकल की गई चीज। तो नसख के डिक्शनरी माने, लुग़वी माने तो नकल करने के हैं और शरई माने, है ना, हर एक फील्ड की एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक इस्तिलाह होती है, उस इस्तिलाह के मुताबिक मनसूख का शरई माना, शरई इस्तिलाह इसकी ये है कि एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म दिया जाना, जिसमें वही हुक्म का माना मफहूम हो सकता है, या फिर इसका एक और मफहूम है मुंतकल होना, यानी हुक्म तो वही है मगर जहां हुक्म 14 अफराद पर लगता था अब सिर्फ 4 अफराद पर लगेगा और 10 उसमें से खारिज होंगे। हुक्म तो बाकी है मगर मुंतकिल हुआ वो हुक्म, अब वो अहकाम मुंतकिल हुए, बहुत सारे अफराद के बजाय अब चंद अफराद पर लगने लगे। इसको क्या कहते हैं? मनसूख होना। ये है मनसूख का एक मोटा और सीधा सा मफहूम। और कहा मैंने नासिख उस आयत को कहते हैं जो नाजिल होने के बाद इससे पहले जो हुक्म था उसको मनसूख कर देती हो, उसको कहते हैं नासिख। नासिख कहते हैं मनसूख करने वाली चीज को। नासिख आयत यानी वो आयत जिसके नाजिल होने के बाद इससे पहले जो आयत हो उसको मनसूख कर देती है, वो अहकाम उसमें से निकल जाते हैं। नसख मनसूख की कुल 3 अक़साम पाई जाती है। ये कैसे मालूम हुआ? जितनी भी कुरान मजीद की आयतें हैं नासिख और मनसूख, उलमा ने उन सबको एक जगह जमा किया और देखा कि किस एतबार से कोई आयत नासिख हो रही है, किस एतबार से कोई आयत मनसूख हो रही है। वह कि मनसूख का हुक्म किस तरह लग रहा है, उन सब को जब देखकर उनकी तक़सीम की गई तो 3 तरीके से मनसूख का हुक्म लगता है। गोया कि नसख की 3 किस्में हैं। पहली मुतलक़न नसख। पहली क्या है? मुतलक़न नसख, यानी एक हुक्म को बदल कर दूसरा हुक्म दिया जाता है। एक हुक्म को बदल कर दूसरा हुक्म, पहले जो हुक्म था अब उसको बदल दिया जाता है, दूसरा हुक्म दिया जाता है। ये एक ऐसा उन्वान है, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप और नुक्ता ब नुक्ता, पॉइंट बाय पॉइंट अगर ले लें तो कम से कम 1-1 घंटे के 5 दुरूस दरकार, जिसमें मोटा मोटा नासिख और मनसूख समझ में आएगा। कब? अगर एक एक बात समझाई जाए, उसका हवाला कुरान से आयत, कुरान की आयत से और हदीस से दिया जाए तब। जैसा कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक दलील के तौर पर एक हवाला ये दे सकता हूँ। कुरान में एक जगह पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब भी मेरे नबी से सरगोशी करो तो पहले सत्ता करो। आज भी ये आयत मौजूद है, अमल कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। इसके बाद एक आयत है, अल्लाह ने कहा अब तुमने नबी से सरगोशी कर लिया करो, कोई हर्ज नहीं है, सदका करने की जरूरत नहीं है। ये नासिख आयत है, इसमें हुक्म ही बदल दिया गया। अब पहली वाली आयत पे अमल करना भी चाहे इंसान कर नहीं सकता, क्योंकि आप तो आज तो आप दोनों का इंतकाल ही हो,
جبکہ आसम जिंदा थे तभी अल्लाह ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया और नासिक आयत अल्लाह ने उतार दी। इसको कहते हैं मुतलकन नसख। दूसरा है नसख मअत तिलावा, यानी मनसूख कर दी गई तिलावत के साथ में। यानी बाज अहकाम ऐसे हैं जिनकी तिलावत नहीं होती, बाज आयतें ऐसी हैं जिसका हुक्म तो मौजूद है मगर तिलावत नहीं। और तीसरा है मनसूख तिलावा, यानी ये तिलावत के साथ में मनसूख हो गई, तिलावत के साथ में ही वो आयत मनसूख हो गई। पहला वाला क्या था, नसख मअत तिलावा, यानी तिलावत के साथ साथ वो मनसूख हो गई, या तिलावत को लेकर मनसूख हो गई, हुक्म भी मनसूख तिलावत भी मनसूख। इस तरह ये तीन किस्म की मनसूख अहकामात या मनसूख आयतें हमें कुरान मजीद में मिलती है। जैसा कि एक आयत है मनसूख तिलावा, यानी तिलावत के साथ में जो मनसूख हुई। कुरान मजीद में एक आयत थी, मुस्लिम अहमद वगैरह में हदीस है कि अल्लाह ने ये जगह कहा कि जो भी मर्द और औरत है जानी है तो उन्हें रजम कर दिया जाए। अश्शैखु वश्शैखतु अल मरजुअतु अलबत्ता, ऐसे कुछ अल्फाज है उसके मुस्लिम अहमद के हदीस है। ये हदीस के मुताबिक ये आयत कुरान मजीद में मौजूद थी मगर आज इसकी तिलावत नहीं होती, ये निकाल दी गई, मगर इसका हुक्म आज भी मौजूद है। जो भी जिना करे उसको रजम किया जाता है। शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करे तो उन्हें रजम किया जाता है, हुक्म आज भी मौजूद है मगर तिलावत नहीं है। कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जो तिलावत और हुक्म के एतबार से दोनों मनसूख है, यानी न तिलावत होती है न उनका क्या होता है, उन पर अमल होता है। ऐसी आयतों के ताल्लुक अल्लाह ने कहा ओ नुनसिहा, यानी वो आयत और उसका अमल दोनों हम भुला देते हैं। लफ्ज अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया है, मनसूख के साथ साथ लफ्ज नसीह, यानी भुला देते हैं। वो आयत के अल्फाज हम भुला देते हैं और उस पर अमल क्या करने उसे हम भुला देते हैं। वो आयत ही पूरे सिरे से गायब कर देता अल्लाह ताला, ऐसा भी हुआ है। इस तरह ये तीन किस्म की नसख की किस्में हमें पूरे कुरान में से मिलती है। जब आइए सवाल ये उठता है कि अल्लाह ने इस तरह का सिस्टम क्यों रखा, नासिख और मनसूख का सिस्टम अल्लाह की तरफ से हुआ, किसी शख्स ने नहीं किया, किसी शख्स ने नहीं किया। बाद लोग ये सवाल कर सकते हैं ऐसा कैसा हो सकता कि अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला है, पहले हुक्म दिया और बाद में हुक्म दिया, ऐसा कैसा हो सकता। ये सिस्टम अल्लाह ही की तरफ से पहले ही अकीदा रखे। 1450 साल से मुसलमान यही अकीदा रखते आ रहे हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक आयत नाजिल करता है, बाद में उस आयत को बदल कर दूसरी आयत ले आता है। ये मुसलमान का अकीदा है। अल्लाह ने ऐसा किया, ये अल्लाह की तरफ से आयतों का मनसूख करना ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ। ये अकीदा अहले सुन्ना वल जमा का होना चाहिए। इस अकीदे के खिलाफ जो जाए वो अहले सुन्ना वल जमा से निकल कर गुमराह फिरकों में शामिल हो जाता है। अब कोई कहने वाला कह सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला आलिमुल गैब, फिर भी उसने पहले एक हुक्म दिया जबकि मालूम था उसे अमल नहीं करना है, फिर दूसरा के हुक्म दिया। इस गुत्थी को, इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए सीरत नबी का एक वाकया अपने निगाहों के सामने लाइए और शायद ये मसला हल हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए 16 से 17 महीने तक 16 से 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके आपको सब नमाज पढ़ते थे। बैतुल मुकद्दस क़िबला था उस वक्त। जरा बताइए कुरान में कहाँ है ऐसी आयत जिसमें बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म हो? नहीं है ना। तो आप सल्लम ने किस बुनियाद पर 16-17 महीने मदीना में रहकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा? हम ये तो अकीदा नहीं रख सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से ये काम किया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह ताला तो नबी के ताल्लुक से नजर में ये कहता है कि मेरा नबी कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करता।
मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मेरा नबी कभी अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से कोई बात तक नहीं करता। अमल करना तो दूर की बात है। यंतिकु लफ्ज है, नतक़ के मानी बोलना, बातचीत करना। मेरा नबी तो अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से कोई बात तक नहीं करता। इन हुवा इल्ला वही यूहा, वो जो कुछ कहता है और करता है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस वही होती है। इस आयत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मालूम हुआ कि नबी वसल्लम का एक एक अमल, एक एक कौल, एक एक फेल और एक एक तकरीर यानी इजाजत ये अल्लाह की तरफ से हुआ करती थी। तभी तो 16-17 महीने आप वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस तरफ किबला बनाकर आप ने नमाज पढ़ी कि अल्लाह की तरफ से था। इसको कहते हैं वही गैर मतलू, ऐसी वही आप वसल्लम के पास आई जिसकी आदम तिलावत नहीं करते। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने की आयत तो है नहीं और आप वसल्लम ने अमल किया, लेकिन वो वही आप वसल्लम तक आई थी। इससे मालूम हुआ कि जहां ये कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है वहीं पर अहादीस सहीहा जो अहादीस की किताब मिलते वो भी अल्लाह की तरफ से ही वही है। फर्क इतना है कि ये वही मतलू है जिसकी तिलावत होती है और वो वही गैर मतलू है जिसकी तिलावत नहीं होती, मगर वो वही ही है जो अल्लाह की तरफ से उतरा करती थी। आप सल्लम को वही आई, वही की 8 अक़साम है। अगर आपको कहीं मौका मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी आप उठाकर देखो, पहली ही जिल्द किताबुल वही से शुरुआत होती है। उसमें 8 किस्म की वही किस किस किस्म की होती है बहुत सारे अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लम की जिंदगी के उनमें लाए हैं और 8 किस्म की वहियों का जिक्र किया। कुरान के अलावा भी बाद जगह तो आप सल्लम के ताल्लुक से आता है हदीस में कि सिर्फ एक बात आप सल्लम के दिल में डाल दी जाती, वो वही होती थी अल्लाह की तरफ से और आप सल्लम उसको बयान करते, सहाबा उस पर अमल करते, जिंदगी में पर अमल करते, वही सुन्नत, वही इस्लाम और वही शरीयत बना रहा। सिर्फ क्या है, दिल में एक बात डाल दे फरिश्ते के जरिए से, ये भी अल्लाह की तरफ से था। तो गोया के कुरान मजीद और अहादीस सहीहा ये दोनों वही है। तभी तो आप वसल्लम ने 16-17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी और सहाबा ने पढ़ी। अब अल्लाह ताला इसके जो दूसरा पारा जो शुरू होता है सयक़ुल सुफ़हा, इसी मसले के जिक्र में शुरू होता है कि अल्लाह ने फौरन हुक्म दिया कि अब तुम मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। और हम देख रहे हैं कि आप बार बार आसमान तक निगाहें उठा रहे हैं और चाहते हैं कि मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ चाह कर भी मस्जिद हराम की तरफ यानी खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे पहले अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बैतुल मुक़द्दस रुख करके नमाज पढ़ो। अल्लाह के हुक्म के तहत बैतुल मुक़द्दस रुख करके नमाज पढ़ रहे थे और आप की शिद्दत से ख्वाहिश थी कि खाने काबा जो कि क़िबला इब्राहिमी भी है उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा जाए। मेरी उम्मत को यही हुक्म मिले, आप की ख्वाहिश भी थी। अल्लाह ने कहा कि अब ऐ नबी तुम्हारे ख्वाहिश अल्लाह पूरी कर रहा है, अब जाओ और काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। ये क्या हुआ, हुक्म मनसूख हुआ कि नहीं हुआ? अहकाम आयतों का मनसूख होना गोया कि अहकाम का मनसूख होना है। अहकाम का मनसूख होना गोया कि इस्लाम के शरीयत के अहकाम का मनसूख होना। कोई शख्स इस मुखालिफे में न आए कि आयत तो मनसूख नहीं हुई ना, अहकाम मनसूख हो गए। कुरान में ऐसी मिसाल है, आयत मनसूख हुई उसके बदले आयत आई, वहीं पर एक हदीस मनसूख हो गई, एक कुरान में की आयत नाजिल हुई, एक कुरान में की आयत मनसूख हुई और एक हदीस नाजिल हुई। ऐसा भी हुआ है, बाद जगह हदीस मनसूख हुई और हदीस ही नाजिल हुई। ऐसे भी अहकामात बहरहाल ये सारे नासिक और मनसूख शरीयत में और शरीयत इस्लामिया में हुए। अहकामात में नासिक और मनसूख का होना वो इस्लाम में है, लेकिन सिर्फ कुरान मजीद में। तो ये जो रद्द बदल हुआ अहकाम में नासिक और मनसूख हुआ, ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ आजमाइश के लिए। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को, अपने ईमान वाले बंदों को आजमाना चाहता है। कौन है जो मेरी इबादत मेरे मुताबिक करता है, न कि अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। जैसे अल्लाह ताला, अगर हम चले दूसरे पारे में सयक़ुल सुफ़हा
تو बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ने ईमान वालों के ईमान को निखारने का अंदाज अल्लाह ने बयान किया था। सयक़ुलु सुफ़हा मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। ये बेवकूफ लोग कहते हैं लोगों में से, ये यहूदी है, ये बनो इसराइल है, उनकी तरफ इशारा अल्लाह कहता है मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। ये लोग कहते हैं कि इनके क़िबले को आखिर किसने बदल दिया, अल्लती कानू अलैहा, जिस पर ये पहले थे। बैतुल मुक़द्दस से अचानक असर की नमाज में आप सल्लल्लाहु खाने काबा का रुख करते, अल्लाह हुक्म देता है फौरन आप सल्लल्लाहु खाने काबा का रुख करते हैं। तो ये यहूदी कहते हैं कि इनको किसने हमारे बैतुल मुक़द्दस से मोड़कर खाने काबा की तरफ कर दिया, किसने कर दिया? अल्लाह कहता है कुल आप कहो लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक मग़रिब और कोई जहत और कोई रुख ये तो सब अल्लाह का है, मशरिक हो या मग़रिब अल्लाह का है, जहत और रुख इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्लाह का हुक्म इम्पोर्टेंट है। यहदी मन यशाअ, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देता है इला सिरातिल मुस्तक़ीम, सिराते मुस्तक़ीम की तरफ। तो अल्लाह ताला बड़े पहले अंदाज में कहता है वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अला अल्लज़ीना हदल्लाह वमा काना अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। दूसरे पारे का सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 इसमें अल्लाह कहता है वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो किबले की जो तब्दीली की है, हमारा मकसद सिर्फ ये है लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, कि कौन रसूल की इत्तिबा करता है, कौन रसूल की पैरवी करता है, ये जांचना हमारा मकसद है। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और कौन अपने पैरों के बल, अपनी एड़ियों के बल पीछे हटता है हमारे हुक्म से, ये जानना हमारा मकसद है। इस आयत से, इन आयतों से मालूम हुआ कि नासिख और मनसूख जो कुरान मजीद में मौजूद है वो आजमाइश के लिए है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि मैं चाहे तो कुछ भी हुक्म दो, हलाल को हराम करो, हराम को हलाल करो, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारा काम अकल लगाना नहीं है, तुम्हारा काम ताबेदारी करना है, इत्तिबा करना है, पैरवी करना है। वैसे ही जैसा बाद लोग बहुत ज्यादा अकल लगाकर कहते हैं कि नहीं भाई नासिख मनसूख हमको समझ में नहीं आता, कुरान में भी कोई आयत कैसे मनसूख हो सकती है। मैं कहता हूँ जरा हिस्ट्री उठाकर देखो, इस दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखो। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, पहली औलाद थी, लड़का और लड़की। अब आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी, आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी? अल्लाह ने उनकी शरीयत में हुक्म रखा था कि सगे भाई और बहन शादी कर सकते हैं, निकाह जायज है। अल्लाह चाहता था, अल्लाह ने किया। उसके बाद सगे भाई बहन की का निकाह अल्लाह ने हराम करार दिया। वो चीज तो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ सदियों पहले, कुछ जमाने पहले हलाल किया, वो हराम होगी। क्यों हराम हुई? अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। उसी बात को अल्लाह ताला इन आयतों में वही कहता है, क्या अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? मुखातिबत आप की तरफ है, हालांकि मगर इशारा पूरे यहूदियों की तरफ है, उन यहूदियों की तरफ है जो ये अकीदा रखते थे कि तौरात मनसूख वाली किताब नहीं है, नाकाबिल अमल किताब नहीं है। अल्लाह ने कहा मुखातिब आपको कर रहा हूँ, इशारा उनकी तरफ है कि देखो अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है? अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम इस बात को भी नहीं जानते कि बेशक सारी मिल्कियत, सारी हुकूमत, सारी बादशाह आसमान और जमीन की अल्लाह ही के लिए? तो वो तो जो चाहे सो करे, तुम्हारा काम अल्लाह के अहकामात को परखना, जांचना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना कि कितने सही है, ये काम नहीं है। तुम्हारा काम है ताबेदारी करना, तो गुलामी इख्तियार करना, ये तुम्हारा काम है। सरेंडर करना अपने आप को मुस्लिम बनाकर, ये तुम्हारा काम है। अल्लाह के अहकामात का एनालाइजेशन करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, अगर अल्लाह ताला अहकाम में नासिख और मनसूख न करता, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, अल्लाह के अलावा कौन है तुम्हारा दोस्त और मददगार? ये अल्लाह है जो मुश्किल अहकाम के बदले आसान अहकाम लाता है। जैसे अगर बने इसराइल के लिए
शरीयत मूसवी के अंदर अगर किसी कपड़े पर गंदगी लग जाती तो कपड़े को उतना काट कर फेंकना पड़ता, वही हुक्म अगर आज ही बाकी रहता तो मुसलमानों पर कितनी दिक्कतें जाती, कितनी मुश्किलें जाती, अमल करना महाल हो जाता। अल्लाह ने उसके बदले आसान हुक्म लाया इस शरीयत इस्लाम में, शरीयत मोहम्मदी में, उस कपड़े को धो और उसको इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो। ये आसानी थी, वो हुक्म मनसूख हो गया और ये हुक्म आया। ये सिर्फ शरीयतों का नासिब और मनसूख नहीं, खुद कुरान मजीद में बहुत सारी मिसालें इंशाअल्लाह मैं आपके आगे रखूंगा ऐसी है जिसमें एक आयत बदल कर दूसरी आयत आ गई, आयत वही है सिर्फ हुक्म बदल गया। इसी तरह अहादीस में यही मामला हमें नजर आता है। तो अल्लाह ने कहा कि तू अल्लाह है, अल्लाह चाहता है अपने बंदों को आजमाए और देखे कि कौन अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ताबेदारी इख्तियार करता है। ऐसा कि अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में कहा कि अल्लाह ये देखना चाहता है कौन रसूल की इत्तेबा करता है। उस वक्त रसूल मौजूद थे, आज रसूल की भी इत्तेबा अल्लाह ताला चेक करना चाहता है, अल्लाह की भी इत्तेबा और पैरवी और ताबेदारी अल्लाह ताला चेक करना चाहता है। आजमाइश के लिए नासिख और मनसूख वाले अहकामात है। इसी तरह अगर हम कुरान मजीद में बगौर पढ़े, बहुत सारी मिसालें हमें कुरान में ऐसी मिलती हैं जो आयतें तो मौजूद है दोनों किस्म की, नासिख भी है मनसूख भी। आज हम उसकी तिलावत कर रहे हैं और अमल वही करते हैं जो नासिख आयत है। आज चल एक दो मिसालें हम देखते हैं। सबसे पहली तो यही आयत, यही मिसाल जो आप की सीरत से मैंने आपके आगे रखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप रुख करके नमाज पढ़ते थे, अब खाने काबा पर रुख करके नमाज पढ़ा जाए। आज ही हम उस हुक्म पर अमल कर रहे हैं क्योंकि ये नासिख है, मनसूख पर हम अमल नहीं कर सकते, जबकि उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है। तो क्या सुन्नत नहीं है? बाद में क्या कहते, अल्लाह रसूल ने किया है ना, सुन्नत है, अल्लाह रसूल ने किया है, आप सल्लम का अमल जरूर है और अल्लाह के रसूल ने अब उसको मनसूख कर दिया, अब आप उस पर अमल नहीं कर सकते बल्कि इस पे अमल करेंगे आप जो नासिख है, यानी खाने काबा पर रुख करके। इसी तरह इसका जिक्र कुरान मजीद मौजूद है, जैसा कि दूसरे पारे का मैंने हवाला दिया आपके आगे। इसी तरह कुरान मजीद में जहाँ जंग जिहाद का तज़किरा है वहीं पर अल्लाह ने कहा कि अगर एक मुसलमान जंग के मैदान में उतरे तो 10 काफिरों का मुकाबला कर सकता है ना, कुरान में आया। फिर अनफाल वगैरह में यह आयत मिलेगी आपको, एक मुसलमान अगर जंग के मैदान में, एक ईमान वाला अगर जंग के मैदान में उतरे तो 10 का मुकाबला कर सकता है। फौरन इस आयत को अल्लाह ने मनसूख करके दूसरी आयत, दूसरी तीसरी 2 या 3 आयतों के बाद अल्लाह ने आयत नाज़िल किया कि अब अल्लाह ने जान लिया है कि तुम्हारा ईमान वैसा नहीं है, अब एक मुसलमान 2 काफिर का मुकाबला कर सकता है, एक मुसलमान 2 के बराबर है। ये आयत मौजूद है, एक पहली मनसूख है, दूसरी नासिख है। अब कोई सवाल ये कर सकता है जिसे बार बार दोहरा रहा हो, क्यों नौजुबिल्लाह अल्लाह मालूम नहीं था क्या कि एक मुसलमान 10 के बराबर है कि 2 के बराबर है? नौजुबिल्लाह तो कुरान में गलती नजर आ रही है। कोई कहने वाले कह सकता है कि कुरान में गलती नहीं है, अल्लाह आजमाना चाहता है, अल्लाह मुसलमानों का ईमान जांचना चाहता है। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा ही इसलिए ताकि आजमाए। अल्लाह हलाल को हराम कह सकता है, हराम को हलाल कह सकता है, क्योंकि शरीयत साजी अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। यहाँ तक के नबियों के सरदार अंबिया के हाथ में भी शरीयत साजी नहीं है। शरीयत साजी समझ रहे, शरीयत का बनाना, किसी चीज के हलाल हराम करने का इख्तियार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को। जैसे कि आप सल्लम ने अपने आप और शहर को हराम कर लिया था, अल्लाह ने फौरन दान दपट करते हुए अल्लाह ने तहरीम में आयत नाज़िल की, कहा क्या नबी साहब तुम्हें यह हक किसने दिया कि अल्लाह ने जिसको हलाल किया आप हराम करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हलाल और हराम का इख्तियार नहीं रखते। इस तरह ये आयत हुई। इसी तरह एक और आयत जिसकी मैंने मिसाल दिया कि सरगोशी आप से करने से पहले, सरगोशी कहते हैं खुफिया बातचीत, आहिस्ता बातचीत। ऐसा होता था कि आप के पास सहाबा आते थे, कुछ पत्री पूछा करते थे, मसाइल पूछते थे, और उनका देखा देखी जो नाम निहाद के मुसलमान मुनाफिक थे, यहूदी मुनाफिक जो नाम निहाद मुसलमान थे, वो भी आप से आकर बिना वजह बगैर किसी चीज के आप से घंटों बातचीत करते रहते, कोई सवाल न होता, बस ऐसे ही गप्पे मारते। ये नबी के शान में गुस्ताखी हो रही थी, अब इसका रोकना भी जरूरी था। अल्लाह ने फौरन आयत उतार, अगर मेरे नबी से अगर कोई सरगोशी करना हो, खामोशी कुछ बातचीत करना हो, तो पहले अल्लाह का नाम सदका खैरात करो।
अब ये तो यहूदी थे ही जो कहते थे कि अल्लाह क्यों हमें खर्च करने लगवा रहा है, जबकि अगर वो मालदार है तो वो खुद क्यों नहीं खिलाता गरीबों को। हमको ये यहूदी थे जो कहते थे कि क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं जो खर्च नहीं करता, हमको खर्च करने को कहता है। ये यहूदी अल्लाह पर ऐसा इल्जाम लगाते थे। कभी आयत नाज़िल हुई तो सबके सब सरगोशी करना बंद कर दिए। फायदा किसका हुआ? सहाबा का। सहाबा को तो अमल करना मकसूद था, अल्लाह की जात से मोहब्बत मकसूद थी, अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी मकसूद थी। फौरन जाते थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान रहिए सहाबा की जिंदगी पर। सहाबा से जो मोहब्बत हमारी होनी चाहिए, वाकई इस पर जान भी निछावर करे तो कम है। बाद सहाबा तो रात भर जाकर किसी यहूदी के बाप को सैराब करते, उससे कुछ खजूर लाते, सबका करते, रास्ते में जाके सरगोशी करते। ये देखो है नहीं, मेहनत करके कमा रहे थे, सदका दे रहे थे, मगर इसमें बहुत दिक्कतें जा रही सहाबा को। जिनके पास था वो सदका खैरात करते और आप सरगोशी करते, मेरे पास था ही नहीं, वो मेहनत और मुशक्कत करते, कुछ कमाते, सदका खैरात करते, फिर आप सरगोशी करते। अल्लाह ने देखा कि अल्लाह ताला तुम पर रहम करना चाहते हैं, जाओ अब मैंने तुम्हें छूट दे दी, अब सरगोशी मत करो। इससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि यहूदी इससे कट गए, अब सरगोशी करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दिल में डर बैठ गया है, खर्च करना पड़ता। ये नासिक और मनसूख का फायदा हुआ कि अल्लाह ने आजमा दिया कि कौन है जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है। यहूदी खुद बहुत कट गए, यहूदी खुद बहुत पीछे ही गए। जैसा कि क़िबलतैन का मसला है, जब तक बैतुल मुक़द्दस से रुख करके नमाज पढ़ा जा रहा था, यहूदी सब खुश थे। जैसे खाने काबा का रुख किया गया तो सबसे पीछे हट गए, मतलब ईमान सही नहीं था, अल्लाह ने आजमा दिया। और जो ईमान वाले थे उनको रुख से कुछ मतलब नहीं था कि कौन सी जहत है, कौन सा रुख है, उन्हें यह मकसूद था कि हमारा रब हमसे क्या चाहता, हमारा रसूल हमसे क्या चाहते। नमाज ही में हुक्म हुआ, फौरन आधी नमाज क्या है बैतुल मुक़द्दस तरफ और आधी नमाज खाने काबा की तरफ। उनको रुख से और जहत से कोई मतलब नहीं। इस तरह अल्लाह ताला नासिख और मनसूख के जरिए से अपने ईमान वालों को, अपने बंदों को आजमाता है। आइए जहां हमें नासिख और मनसूख कि ये मसाइल मालूम हुए, वहीं पर एक और चीज समझते हुए चले, वो ये कि जिस तरह कुरान मजीद में एक हुक्म मनसूख हो जाता है और उसके बदले दूसरा हुक्म नासिख आ जाता है, वो है कि इसी तरह इस्लाम के अहकाम और मसाइल में भी बाज़ हुक्म मनसूख हो जाते हैं, उसके बदले नासिख आ जाता है। इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है, मगर ये मालूम कैसे होगा कि फला हुक्म मनसूख हो गया और नया हुक्म ये नासिख आ गया, ये कैसे मालूम होगा? इसके लिए हर आयत को या हर हदीस को या हर मसले को मनसूख करने के लिए नासिख का होना जरूरी है। हमारे इस मुबाहिसे से, इस दर्स से, इस तफसीर से ये एक निचोड़ वाली बातें मालूम होती है कि हर आयत को या हर हदीस को या किसी मसले को मनसूख करने के लिए नासिख मसला, नासिख आयत, नासिख हदीस होना जरूरी है। अगर नासिख हदीस मौजूद नहीं है तो जो हदीस पेश की जा रही है वही असल, वही काबिल अमल होती है। अगर ये उसूल समझ में आ गया है तो आपके इस्लाम के बहुत सारे मसाइल, चाहे अकाइद में हो चाहे ऐमाल में, आपके हल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐमाल ऐसे हैं जो सुन्नत रसूल से साबित है, मगर लोग कहते हैं तो मनसूख हो गया, अब वो काबिल अमल नहीं रहा, तो जबकि कोई नासिख हदीस या नासिख आयत मौजूद नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहते हैं मनसूख हो गया। मनसूख कैसे हुआ जब तक नासिख मौजूद ही नहीं है। इसी तरह एक और मुखालिफत लोगों को यह है कि बहुत सारी कुरान मजीद की ऐसी आयतें हैं जो अहादीस के खिलाफ चली जाती है, जिनकी वजह से उन अहादीस का मानना हम पर लाजिम नहीं आता, क्योंकि वो कुरान की आयतों के खिलाफ वो हदीसें जा रही है, इसलिए उन हदीसों का मानना हम पर लाजिम नहीं आता, या गोया के न माने तो बेहतर है या फिर न ही मानना चाहिए या मत मानो। ये जो कहते हैं कि ये जो बातें अहादीस में मौजूद है, इसके बदल इनको मनसूख करने के लिए अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल किया। कहीं पर भी कोई भी आयत अगर मिलती है हदीस के खिलाफ तो कहते कि अब इस हदीस पर कोई अमल नहीं है। यहाँ पर भी एक मुखालिफा है, वो मुखालिफा ये है कि किसी हदीस को छोड़ने के लिए भी
उस हदीस के ताल्लुक से ही कोई आयत मौजूद हो जिसको नासिक कर सकते हैं। जिस तरह के हदीस से तो ये मालूम हो रहा है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके अल्लाह रसूल नमाज पढ़े, हदीसों से मालूम हो रहा है, कुरान में तो मौजूद नहीं है। इसको मनसूख करने के लिए नासिक आयत अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किया। उस हदीस वाले अमल को मनसूख करने के लिए कुरान की आयत मौजूद है। इसी तरह किसी भी हदीस को मनसूख करने के लिए या छोड़ने के लिए कुरान की आयत या कोई और हदीस होना जरूरी है, न हो तो किसी हदीस को छोड़ा नहीं जा सकता। अब आइए एक और मुसल्लमा उसूल हम देखते हुए चले। तो जिस तरह एक मुसलमान का ये अकीदा है, एक कुरान मजीद की आयत दूसरी कुरान मजीद की आयत से नहीं टकरा सकती, नहीं खिलाफ जा सकती, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता, है ना? सबका अकीदा है ना। जबकि नासिक और मनसूख तो आ गया, नासिक और मनसूख तो क्लियर हो गया। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान के अंदर भी शक शुबा पैदा करते हैं कि कुरान में भी बाज आयतें ऐसी है जो टकराने वाली है, तो नासिक और मनसूख को लेकर आते हैं। जबकि आज हमारा आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो नासिक और मनसूख सिर्फ अहकामात है, अल्लाह आजमाना चाहता है। तो जिस तरह एक मुसलमान का अकीदा यह है कि कुरान की आयत से नहीं टकरा सकती, उसी तरह एक कुरान की आयत से एक सही हदीस नहीं टकरा सकती। वजह बताऊंगा क्यों नहीं टकरा सकती। जिस तरह एक कुरान की आयत से एक सही हदीस नहीं टकरा सकती, उसी तरह एक सही हदीस से दूसरी सही हदीस भी नहीं टकरा सकती। ये मुसल्लमा उसूल है, इस पर किसी का चैलेंज नहीं। कैसे? जिस तरह कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, उसी तरह हमने ये जाना वही गैर मतलूब के तौर पर अहादीस भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो क्या अल्लाह ताला अपने ही खिलाफ बात करेगा? कुरान में एक बात करेगा और हदीस में एक अलग और उलट बात करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मुतकल्लिम और असल मम्मा और जरिया तो अल्लाह ही है, चाहे कुरान का नाजिल होना हो चाहे हदीस का नाजिल होना हो। क्योंकि हदीसों के ताल्लुक से तो कुरान ने खुद सूरह नजम में ये कह दिया, मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करता, वो जो कुछ कहता है वही के जरिए से कहता है। तो बहुत सारे हदीस ऐसी हैं जिन पर ये मुसलमान का अकीदा है और अमल भी कर रहा है, मगर वो कुरान में मौजूद नहीं है। किस बुनियाद पर कर रहा है, किस बुनियाद पर अकीदा रखे हुए? इसी बुनियाद पर ना कि वो जो बातें हैं, वो जो सुन्नत है, वो अल्लाह की तरफ से, रसूल की मर्जी से नहीं है। जैसा कि एक हदीस मुझे याद आती है, सही मुस्लिम हदीस है, बात साहबा आए तो और कहा कि अल्लाह के रसूल, हम क्या करते हैं, खजूर में एक दूसरे की कलमे लगाते हैं, उससे हमारी फसलें बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो फूल और फल देने वाला जात अल्लाह की, न करो अच्छा है, कह दिया अल्लाह के रसूल ने। और साहबा ने उस साल कलमे नहीं लगाई, डायरेक्ट पेड़ पौधों को उगने दिया, खजूर के बेलों को, खजूर के पेड़ों को उगने दिया। उस साल फसलें कम आई। रसूल पूछा क्या हुआ? बोले खजूर की फसलें कम आई। क्यों? बोले आपने इस तरह कहा था ना कि न करो तो अच्छा है। तो अल्लाह ने कहा अरे मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैंने, तुम दुनिया के इस मामले में तू हो सकता है मुझसे बेहतर जानो। लफ्ज़ फौरन अपनी बात की तरफ रुजू करते हुए कहा ये मैंने कोई शरीय एतबार से कोई हुक्म नहीं लगाया था तुमको, इस दुनियावी एतबार से मैंने कहा। तो साहबा ने फिर दूसरे साल कलमे लगाए, तो फिर क्या है, फसले आई। अल्लाह के रसूल खुद अपनी बात की तरफ भी रुजू करके बतला रहे ये शरीय नहीं है, गोया कि अपनी मर्जी से बात नहीं कहते थे, जो बात कहते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था। जब अल्लाह की तरफ से होता तो कोई बदल नहीं सकता उसको। अल्लाह के रसूल बिल्कुल फर्म होते थे। जैसा कि इससे पहले की आयतों की तशरीह और तफसीर में हमने देखा कि कुछ लोग आए आसमान से, पूछा कि ऐसे सवाल कर रहे जिसका जवाब नबी के अलावा कोई नहीं जानता। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के आलिम थे, उसको कभी मुसलमान नहीं हुए थे, आप के पास आए और सवाल किया, ऐसे सवाल कर रहा हूँ जो नबी के अलावा कोई नहीं जानता, पूछो। जैसे सवाल किया आप थोड़ी देर खामोश रहे, गोया कि ऐसा लग रहा था जैसे वही नाजिल हुई है। वही तीनों सवाल के जवाब उसी वक्त वही की गई और आप ने जू का तू ने जवाब दिया। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करता बल्कि वही के जरिए से बात करता है। तो इस तरह एक कुरान की आयत दूसरे कुरान की आयत से नहीं टकरा सकती, उसी तरह एक कुरान की आयत से एक सही हदीस नहीं टकरा सकती, उसी तरह एक सही हदीस दूसरी सही हदीस से नहीं टकरा सकती। अगर ये उसूल किसी को समझ में आ जाए तो दीन इस्लाम के बहुत सारे अकाइद और मसाइल में
बहुत सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। वरना फला भी तो हदीस है, फला भी तो अमल है, फला भी तो सुन्नत है, फला भी तो मसला है, फला मुफ्ती साहब ने तो ऐसा कहा था, फला मौलाना जुमा खुद्दीन ने इस तरह कहा था, फला भी तो गलत नहीं है। इतने सालों से हमारे माँ बाप मानते आ रहे हैं, हमारे परदादा मानते आ रहे हैं, हमारा खानदान इस पर अमल करता है, इस तरह कह करके जो सही इस्लाम है वो भी क्या है, कभी कभी मनसूख हो जाता है, नाकाबिल अमल और रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है, जबकि वो सही और सुन्नत होती है, इस्लाम की और शरीयत की बात होती है, उसको भी छोड़ दिया जाता है। उसके लिए जरूरी है कि इस बात को समझे कि चाहे कुरान मजीद हो चाहे अहादीस सही हो, ये दोनों अल्लाह ही की तरफ से है, इनमें टकराव नहीं पाया जाता। अगर टकराव पर जाहिर नजर आ रहा है तो एक नासिख होता है और एक मनसूख होता है। जिसका जो भी आयत या हदीस मनसूख होती है तो उसकी कोई न कोई नासिख और मनसूख आयत या हदीस मौजूद होती है और सरहद उसकी बाकायदा मौजूद होती है। तो इन सारे मसाइल को आपके आगे रखने के बाद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बिलखुसूस मुझे तौफीक दे कि मैं हक बात को ही बयान करूँ और आपके आगे हक बात को ही पेश करूँ। अल्लाह ताला आपको भी बिलखुसूस तौफीक दे कि आप मुझसे हक ही सुने और हक ही समझे। अल्लाह ताला दुआ कि अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचाए और हिदायत पर चलाए। तो आप दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।